Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the news with some infographic and content so that they can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. So these are the list of the topic for the day. Today is 11th of January. The first topic is rise in the private investment in the manufacturing, that is in the quarter 3. The second topic is center state meeting on the COVID news. So because officially confirmation has come from the Prime Minister that from 16 January onwards, the government would be starting the vaccination process. The third topic is India-Nepal to discuss the border dispute. The second last topic, that is promoting electric mobility in the country. And the last topic is SOP for the immunization of emergency use, right? So these are the list of the topic. Mostly the news that I have covered today is from the Hindu itself, and the MCQs, talking about the MCQs question. So I'll be discussing the MCQs at the end of this session, and also let you know the explanation of previous day questions so that you could know the correct option and the explanation part. Now, starting with the first topic, that is rise in the private investment in the manufacturing, that is quarter 3. The news has been reported in the Hindu. As I've told you in the beginning, आज के जितने भी news है maximum news Hindu से cover किए गए हैं. So how the manufacturing has improved in the quarter 3, and this is a good signal that has been seen in the quarters, right? तो जो अभी लेटेस्ट डेटा रिपोर्ट की गई है प्रोजेक्ट टुडे के द्वारा. प्रोजेक्ट टुडे इज एन इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक दैट रिपोर्ट्स द इंडिपेंडेंटली दे रिपोर्ट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस. तो उनके मुताबिक जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं क्वार्टर 3 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, दैट हैज़ राइज इन. दिस इज फॉर 2021 इन द क्वार्टर 3. Now, the positive signal has led by 102% surge in the manufacturing investment, जहाँ पे इंडिया की जो अगर आप ओवरऑल बात करें ग्रोथ की, सो हेल्दी ग्रोथ ऑफ 10.3% इंक्रीज इन द फ्रेश स्पेंडिंग. जो फ्रेश स्पेंडिंग है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें या सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो दैट हैज़ इंक्रीज टू 10.3%, राइट, ओवर द क्वार्टर 3. अभी प्रेजेंट में जो प्रीवियस क्वार्टर थी उससे 10.3% ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और ओवरऑल जो सर्च देखा गया पॉजिटिव सिग्नल वो 102% के आसपास है. Now talking about the funding constraints by the government, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 है तो गवर्नमेंट के पास जो फंड की बाइफर्केशन है वो बहुत ही डाइवर्टेड है. सो द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज़ कोलैप्स्ड बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर बिकॉज गवर्नमेंट वॉज मोर कंसर्न ऑन रिवाइविंग ईच सेक्टर, नॉट ओनली स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग. इस वजह से स्पेंडिंग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम हुई है. Now the funding constraint has become the impact of state. इस वजह से जो स्टेट की परफॉर्मेंसेस थी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के वो भी बहुत हद तक गिरी है. एंड द न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डाउन नियरली 25% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर. सो द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज डेटोरेटेड बाय 25%, राइट. Now coming to the positive indicators, क्या क्या ऐसे positive signals हैं after the revival in the quarter 3? What are the things that has improved? So increase has been registered in the fresh project by the private sector. This is 102.5%. और second quarter की बात करें जहाँ पे 36 in second quarter में 105, and in the third quarter it was like 36.5%. This indicate the willingness of the private promoters to take part in the future prospect ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल है जो मैन्युफैक्चरिंग को आगे ले जाने की एक रोड मैप बताती है, एक डायरेक्शन देती है. नाउ विद दिस इंटरेस्ट जो कोविड-19 के बाद जो वैक्सीनेशंस को लेकर अगर बात करें तो जो गेन कॉन्ट्रैक्शन है क्वार्टर 4 की अगर देखी जाए तो एक्टिविटी बहुत हद तक नॉर्मल सी हो गई है इंडिया में. और आफ्टर द फाइनल वैक्सीनेशन प्रोसेस विच वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 16 जनवरी इटसेल्फ, और गवर्नमेंट ने कहा है कि मोस्टली जितने भी प्रायोरिटी के जिनको वैक्सीनेशन देनी है, चाहे वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हो, ओल्ड एज पीपल हो, कोमॉर्बिड के लोग हों, उनको जुलाई तक कवर कर लिया जाएगा, राइट, बाय जुलाई 2021. सो इट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड कि जो क्वार्टर 4 की जो रिकवरी होगी वो और भी अच्छी होगी, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव इंडिकेटर्स. Now talking about the sector wise performance, as we are more focusing on the manufacturing investment, तो ये सर्ज हुई है 102.2%.
दिस इज इन Q3 ओवर द Q2. यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो 11.25%, माइनिंग 1.12% थ्रू द अदर ग्रोथ रिकॉर्ड्स. और इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स की बात करें, दैट हैज़ कोलैप्स्ड बाय 34.2% ओवर द प्रीवियस क्वार्टर, हैज़ फेल्ट शार्पर, राइट. और इरीगेशन में अगेन 66.9% इन द इरीगेशंस. सो दिस सेक्टर नीड टू परफॉर्म मोर वेल. और इन दोनों चीज़ों पे अगर आने वाली बजट में गवर्नमेंट नीड टू डेफिनेटली फोकस अपॉन दिस, सो दैट दिस सेक्टर कैन ऑल्सो बी रिवाइव्ड एट द अर्लीस्ट. And it is being expected कि after vaccination process had started in India, gradually the sector would be start moving up and they would be showing the positive signals, right? Now state की performances की अगर बात करें तो Maharashtra has received the highest investment of the project in the Q3, followed by Andhra Pradesh and Gujarat. As you know, these three are the best performer when it comes to the investment in the states, right? Tamil Nadu has came in the fourth. South India की अगर बात करें तो second है Tamil Nadu, first is Andhra Pradesh with 156 project worth of 24,100 crore rupees in the Q3. Now, the fall in the revenue has been cited as one of the main reasons behind the state-controlled agencies to prune the investment. तो जिस तरह से GST की भी जो शेयर थी वो भी स्टेट्स को नहीं मिली है, एंड ऑल अदर रेवेन्यूज दैट वाज टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी नहीं मिलने की वजह से स्टेट की जो परफॉर्मेंसेज है वो भी बहुत अच्छी नहीं रह पाई है. But again, the positive aspects and the positive note for you that you can write in the mains examination is that कि Q4 में जो performances है वो काफ़ी अच्छी हो सकती हैं. Now this is an infographic which is there in the newspaper and it forecast कि किस state की किस तरह से performances रही हैं. So first, a total of 2,085 project was announced in the Q3, that is for financial year 2021, and investment in manufacturing, utility, mining sector surged in the Q3 compared to the Q2, or investment in irrigation and electric project are felt compared to the Q2. तो ये दो सेक्टर जो हैं इनकी परफॉर्मेंसेस नेगेटिव रही है बाकी सेक्टर्स के मुकाबले. So you can see the Maharashtra where 54,714 crore. You don't need to just gamble the amount. You just need to read the hierarchy. जिस hierarchy में state की performances रही हैं. So Maharashtra top performer, second Andhra Pradesh, third Gujarat, and fourth is Tamil Nadu. And the last in this category in the top 10 you could say this is Chhattisgarh. Chhattisgarh although performing commendably well, but in terms of other state they are lacking behind. Now coming to the second news, this is center state meeting on the COVID use. The COVID basically जो कोवैक्सीन्स हैं, जो वैक्सीन के यूजेस हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाई गई है कोविन, एंड हाउ दिस वुड बी इंटीग्रेटिंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके लिए मीटिंग की गई थी प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ. सो दिस वुड बी रेलिवेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2. Now, recently, Union Minister of Health and Family Welfare have arranged an online conference with the administrator of the state and the union territory with regards to the COVID software. और कोविन जो सॉफ्टवेयर है दिस वुड फॉर्म अ बैकबोन ऑफ द लास्ट माइल ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन. तो एक डैशबोर्ड बनाई गई है जहाँ पे पूरी वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई गई है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो फाइनल आपकी एप्लीकेशन ट्रैकिंग की प्रोसेस हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है विथ रिगार्ड्स टू द वैक्सीनेशन प्रोसेस वुड बी अवेलेबल ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म दैट इज नोन एज कोविन. Now you can see these are the interface that would be available. इस तरह के interface होंगे where you need to register yourself with a mobile number and a password would be there. And there is a mobile application as well that will help you to register and verify that, right? So government has tried to integrate everything digitally ताकि कहीं भी किसी तरह की black marketing कोई loopholes ना रह सके. Now more about the meeting, क्या क्या मीटिंग में बातें हुई हैं. So the meeting was chaired by the Empire Group Technology और जो डेटा मैनेजमेंट के जो चेयरमैन हैं उनके साथ मीटिंग की गई. So the national expert on the vaccine administration was there और ये बातें रखी गई है कि किस तरह से हैजल फ्री और इंडिया में ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोसेस को और दुरुस्त किया जा सकता है.
And the participants that were included were the state principal secretaries, director of the national health mission, state immunization के जो ऑफिसर्स थे और जो सीनियर ऑफिसर्स थे हेल्थ मिनिस्ट्री के, उनके साथ ये पूरी मीटिंग हुई है. All the vaccination related information when beneficiaries were inculcated, तो वैक्सीन के रिलेटेड जो सब्सिक्वेंट जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी that was non negotiable, that was to be discussed. And it is very important for the country like India कि अगर रूरल इंडिया की बात करें या फिर अर्बन इंडिया की बात करें, दोनों जगह पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ वी वांट कि दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली वैक्सीनेशन प्रोसेस काम करे. Now for that, आधार हैज़ बिकम अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट. तो ऑफिशियल ने कहा कि जो बोगस आधार है या फिर जो डुप्लीकेट प्रॉक्सीज आधार है उनसे कैसे बचा जा सके, बिकॉज मेनी ऑफ द आधार विच इज स्टिल नॉट वैलिडेटेड. इसके बारे में कंसर्न्स पहले भी रेज की गई थी कि कुछ आधार के डेटाज जो हैं वो प्रॉक्सीज हैं, डेटाज हैं. सो बेनिफिशियरी वुड हैव टू यूनिकली एंड आइडेंटिफाइडली हैव टू बी आइडेंटिफाइड. उनके आधार नंबर से उनके जो नेटिव एरियाज में जो बूथ्स होंगे उनको एलोकेट किया जाएगा. बाय बूथ आई मीन मेडिकल सेंटर्स बनाए जाएंगे जिनको बूथ या फिर मेडिकल सेंटर्स बोले जा सकते हैं. एंड दे वुड बी एलोकेटेड कि किस बूथ में जा करके उनको वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है. Now the beneficiary would be sending their Aadhaar number as well as their mobile number to access the vaccination related communications. क्योंकि double dose vaccination है, the vaccine dose is double. So if any situation worsen after the vaccination, they need to monitor it. So further communications के लिए आपके मोबाइल नंबर भी रखे जाएंगे. जो ये खास करके जो बूथ्स बनाए गए हैं वो आपके साथ आपके आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी अपने साथ स्टोर करेंगे. Now coming to the rollout of the vaccine, as we know that the Prime Minister has said that India would be gearing up for the vaccination process on January 16 and the first beneficiaries would be 3 crore health worker, जहाँ पे सैनिटेशन वर्कर को भी इंक्लूड किया गया है. वैसे लोग जो 50 ईयर्स के ऊपर हैं और जो कोमॉर्बिडिटीज के लोग हैं, they would be the first to be vaccinated. And a plan is to have 30 crore people inculcated by July. तो इस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं इनको जुलाई तक वैक्सीनेट कर दिया जाएगा. Now the government has approved the use of emergency vaccine. 2 emergency वैक्सीन के emergency authorization भी इंडिया में सिट्सको और ICMR ने दिए हैं. These 2 वैक्सीन आर कोविशील्ड और कोवैक्सीन. ये 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो कि इमरजेंसी पर्पसेस में हॉस्पिटल्स डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट्स को. Now coming to the other news, that is India-Nepal to discuss the border dispute. As we have seen, there was a dispute in terms of the new map that was being published by the Nepal itself and the India. तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा controversy हुई है. Now Nepal is willing and they are looking forward with a good relationship with India. So this can be important for your general studies paper 2 in terms of your IR section. और prelims के लिए भी जो map work है वो prelims के लिए भी काफ़ी ज़्यादा helpful होंगे. So the Nepal government has said, by Nepal government I mean the Nepal Prime Minister has said that it want equality in equality based relationship. This is what the statement is coming from the Prime Minister of Nepal himself, and he said कि equality based friendship चाहिए हमें इंडिया के साथ. और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन को एड्रेस करते हुए वहाँ के पार्लियामेंट में, दैट इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द PM ऑफ नेपाल सेड कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं नेपाल के, दे वुड बी विजिटिंग इंडिया ऑन January 14 टू डिस्कस द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द बॉर्डर और सेवरल अदर इशूज दैट इज स्टिल अलाइंग और पेंडिंग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इंडिया और नेपाल की, दैट हैज़ टू बी वेरी very seamlessly, very smooth, because Nepal is a country which already had a very good relationship with country like India. तो कुछ छोटे मोटे बातों को लेकर के जो भी बायलैटरल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं नेपाल के, वुड बी विजिटिंग टू इंडिया. Now reasons for the dispute की अगर बात करें, so सबसे पहली बात which we have already discussed, which were regarding to the map which was there and claimed that Kalapani, Lipu Lake and Limpidurwa region in the Pithoragarh district. तो फर्स्ट जो मैप थी वो इंडिया ने रिलीज़ की थी. उसके बाद इस तरह के मैप नेपाल ने रिलीज़ किया कि ये जो रीजन है दैट इज़ नॉट देयर इन द इंडिया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेपाल. तो जब नेपाल की मैप रिलीज़ की गई तो इंडिया ने उसको सीधे खारिज कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड सेइंग दैट नेपाल न्यू मैप इन्वॉल्व आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट ऑफ द टेरिटरीज विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड एविडेंस. सो दिस इज़ द ऑफिशियल कन्फर्मेशन और ऑफिशियल क्या बोलते हैं स्टेटमेंट जो आई थी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई थी इसको चीज़ को लेकर के.
Now, the announcement has put to the end to the relationship, which was hit by the Kala Pani territorial dispute nearly an year ago. So, इसको almost एक साल हो चुके हैं. Now, both countries looking forward how they can augment their relationship further. तो क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं दोनों कंट्री के बीच में? डेफिनेटली इंडिया एंड नेपाल हैज़ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द अरीना ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, विच आई हैव टोल्ड इन द बिगनिंग. बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में जो दोनों कंट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. Now the second would be India want a equality based friendship with India takes on to the new height. And third would be India should also try to resolve the boundary dispute taking into account all shared environmentality कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो भी इन्वायरमेंटल कैरेक्टर्स हैं उन चीज़ों को देखते हुए प्रैक्टिकली जो चीज़ें पॉसिबल हैं उसके तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बोथ फॉर द इंडिया एंड द नेपाल. Now this is a map which will help you understand. ये उत्तराखंड का जो रीजन है, this is लिम्पी दुर्वा and this is the Kala Pani Limpu Lake region. This is Kala Pani and this is Lipu Lake Pass, which is adjacent to the China. So this was a reason because of which the controversy has arisen, and that has led to the degradation of relationship between the India and Nepal. Now, promoting electric mobility in the country. This is an editorial reported in the Hindu, and it talks about how the lithium and cobalt industry of the batteries can be again further augmenting the electric vehicles in the country. So this can be again very significant for the General Studies paper 3 and also very important for the prelims examination. So in order to reduce the dependency of the crude oil, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ड्राफ्ट पॉलिसी को रोल आउट किया जाए दैट में एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन प्रोपेलिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज समथिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन कंट्री लाइक इंडिया. एमिड द जो पॉपुलेशन है या फिर जो पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So for that concern, government has also adopted fast adoptive of manufacturing of hybrid electric vehicle, जिसको FAME 2 के नाम से भी जाना जाता है. ये वर्जन है गवर्नमेंट की जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1.3 बिलियन जो बजट्स हैं उसको एलोकेट किए गए हैं ताकि इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस लाई जा सकें, 3 व्हीलर्स हों जो कि इलेक्ट्रिक बैटरी से चलें. ऑलरेडी वी हैव अ बैटरीज व्हीकल्स विच इज़ रनिंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. फर्दर 4 व्हीलर्स जो हैं कमर्शियल पर्पज़ के, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक यूजेस की बात कही गई है टू कंट्रोल द पॉल्यूशन लेवल. Now for that concern, लिथियम और जो कोबाल्ट बैटरी इंडस्ट्री है दैट इज़ लाइकली टू ग्रो, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो डोमेस्टिकली इंडस्ट्री है उसको ग्रो किया जाए, उसी की तरफ स्विच करने चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये लोग ज़्यादा प्रमोट कर सकें. Now talking about the FAME, as we have discussed already, FAME की अगर बात करें तो ये टारगेट 2022 के लिए रखी गई है जहाँ पे 6.7 मिलियन हाइब्रिड व्हीकल्स सेल की बात की गई है. 9500 लीटर्स ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूल सेविंग वुड बी देयर and 2 million tons of reduction in the pollution. This is one of the significant part because of which government is adopting this initiative, and 65,000 direct and 3 lakh indirect job would be created in this sector. So this is again a very advantage of this. Now what are the advantages of electric vehicles? क्या क्या फ़ायदे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की? तो अगर बात करें प्रोग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात की जाए, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के लिए हो या फिर इन्वायरमेंट के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट की जानी चाहिए. नाउ रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ क्रूड ऑयल विच गवर्नमेंट हैज़ टू पे अ लॉट, क्योंकि जो हमारी करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल. सो इंडिया वुड बी एबल टू कोप अप विद द करेंट अकाउंट डेफिसिट एज वेल. एंड बिसाइड दिस इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली वाइबल ऑप्शन है इंडिया के लिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइन ट्यून किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ. Now this will also influence the foreign policy of our security जहाँ पे we are shifting from West Asia to the Latin America. Now India import almost 2 to 8.6 metric ton of the crude oil, जिसकी जो टोटल वर्थ है वो $120 बिलियन के आसपास है. तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो रुझान है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर बढ़ती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से ज़्यादा इनिशिएट करती है, तो ये जो अमाउंट है इसमें बहुत हद तक सेविंग हो सकती है. एंड एज यू नो इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ओवर वैल्यू, राइट. तो हमारी जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम होगी, और इंडिया में खास करके अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ किए जाए तो जो पॉल्यूशन है वो कम होगी और हमारे एक्सचेकर पे भी काफ़ी ज़्यादा
भार कम पड़ेगा, राइट. सो वुड बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस $120 billion रुपीज. Now subsidy on the battery makers. So government has already said, नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया था जहां पे उन्होंने कहा है कि $4.6 billion की सब्सिडी दी जाएगी बैटरी मेकर्स को. सो दे आर प्रमोटिंग द पीपल टू कम इनटू द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड दीज पॉलिसी आर एम्बेडेड विद द विजन ऑफ हैव 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल टू पे रोड बाय 2030. तो आने वाले समय में गवर्नमेंट ने जो नीति आयोग ने एक रोड मैप जो बनाया, जो विजन बनाया है, उसमें 2030 तक मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करने की बात की गई है. And in September 2019, जापान की जो ऑटोमोबाइल कंपनी है सुजुकी, they have formed a consortium with the Japan ऑटोमोबाइल कंपोनेंट डेंसो और तोशिबा के साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाई जा सके जहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रोड्स बनाए जाएंगे, सो दैट द एंटायर इंडिया would be coming up with electric vehicles by the coming 2030, right? So this is a target which has been set by the नीति आयोग and government is looking forward कि जो FAME 2 है, मैंने आपको FAME 2 के बारे में बताया है, FAME 2 initiative should become very successful in the country like India. Now promoting domestic battery manufacturing, किस तरह से इंडिया में इसको प्रमोट किया जा सकता है. तो इंडिया में डेवलप करने की ज़रूरत है, फंडामेंटल चेंजेस लाने की ज़रूरत है. इन द रिसोर्स रिच लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो है वहाँ से वी नीड टू बाय द लिथियम रिजर्व सो दैट वी कुड मैन्युफैक्चरिंग द बैटरीज. एंड लिथियम इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द ड्रग ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर में भी ये काफ़ी हद तक मदद करती है. तो इसके फ़ायदे अलग हैं बैटरीज में भी और ह्यूमन के ओवरऑल मेडिकल साइंसेज में भी आप देखें तो इसके फ़ायदे हैं, राइट. तो कंट्रीज लाइक अभी करेंटली अगर बात करें तो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है इंडिया की, दैट इज लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, वेनेजुएला. सो दीज हैव मोस्टली कंसंट्रेटेड ऑन द क्रूड ऑयल एंड 14 to 20% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम दिस कंट्री. तो अंडरस्टैंडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ जॉइंट वेंचर will domestically help Indian market to drive into the international market. और ये ज़रूरी है कि जो खास करके जो डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करने के लिए इन सारे कंट्रीज़ के साथ एक टाई अप बनाया जाए ताकि हमें वहाँ से जो लिथियम की जो ओवरऑल पॉपुलर जो लिथियम रिच कंट्रीज़ है खास करके लैटिन अमेरिका, उनके साथ कोलैबोरेशन की जा सके, राइट, सो दैट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैन बी बूस्ट अप इन इंडिया. Now last topic, that is SOP for immunization emergency use issued by the government of India. So this is only important for your general studies paper 2 because vaccination को किस तरह से क्या जो SOP है, standing operating procedures हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, this has been there. So coming to the news that the Union Minister of Health and Family Welfare जो immunization department है, उन्होंने recently standard operating procedures लाए हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि किस तरह से अगर कोई एडवर्स इवेंट्स होते हैं, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन नोन एज AEFI, क्योंकि मैंने आपको बताया डबल डोज में वैक्सीनेशन दी जाएगी तो उसके अगर कोई भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हुए तो उनसे बचने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो बताए गए हैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट को और जो भी लोग ड्यूटी पे इनरोल्स रहेंगे. तो वैक्सीनेशन ड्राइव विल स्टार्ट फ्रॉम January 16. इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं पुलिस को, खास करके अगर मैं कैपिटल पुलिस नेशनल कैपिटल पुलिस की अगर बात करूँ दिल्ली की, तो ऑल DCPs हैव बीन आस्क्ड टू एजुकेट द SHOs, जितने भी उनके SHOs होंगे जो पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं, दे वुड बी एजुकेटेड, और जो SOPs होंगे दे वुड बी स्टेप बाय स्टेप टू गाइड द पुलिस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द एजेंसीज. तो SOP की अगर बात करें, जो इन्वेस्टिगेटर होंगे उनको ये इंश्योर करना होगा कि किस तरह से वैक्सीन को हैंडल करना है, विक्टिम को किस तरह से असिस्टेंस देनी है, and timely and effective with the law enforcement. Now police officer must also ensure कि जो adverse event following immunization अगर किसी को होती है तो any witness provided the assistance appropriate protection would be care and attention. So there would be a medical team, a backup team to look into the people post immunization. Now documentation की अगर बात करें, so this would be requiring the transportation of AFI sample, laboratory और official stamp पे किए जाएंगे, and vaccine would be again further protected बिकॉज जब तक वैक्सीनेशन इंडिया में पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, वैक्सीन को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखी जाएगी. जिस तरह से आप इलेक्शंस के बाद बैलेट पेपर्स खास करके जो EVM मशीन्स रखी जाती है सिक्योरिटी जोन में, उस तरह से सारे वैक्सीन को भी रखा जाएगा. और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो वैक्सीनेटर कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो. सो दीज आर सम ऑफ द important SOP standard operating procedures that has been issued by the Ministry of Health to the Ministry of Home Affairs, right? So this is what the instruction has been provided.
Now coming to the answers of yesterday questions, that is the Saturday questions के जो correct answers है वो मैं आपको बताऊंगा. So for the first question, the correct option here is C. That statement 1 and 2 is correct, that the president can resign from his office anytime by addressing the letter to the chairman of the Rajya Sabha, and the president hold beyond the office within the time of 5 years and his successor assume the charges. Now the correct option here is B, that the cyclonic rainfall is common and not in the latitude equatorial region. Statement 2 is correct, that the cyclonic rainfall occur wind below all sides and their spiral grade to the cause of filling. Right. Now coming to the MCQs question of the day, the first question is from the history. The Brahma Samaj pioneered the case of widow remarriage. Pandit Vishwachandra Vidyasagar proactively participated in it. So what you have to do, you have to just choose the correct option among these and you have to write your answer in the comment section down below. Coming to the second question from culture, which of the following is an important contribution of prehistoric painting? It helps us to understand human being food habits and their daily activities. The periodic period provided information about the evolution of human civilization. So just choose the correct option and write that in the comment section down below, which among the following is the correct option. You can write that. Any additional information if you want to share with us, that also you can write in the comment section down below. Now if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Service on YouTube, and if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.